m'appelle Annick Lambert, je suis une habitante du Brabant wallon et un membre fondateur de Stand Up for Elephants qui travaille au Népal depuis 2016 maintenant à essayer d'améliorer les conditions de vie des éléphants captifs. Nous avons à ce jour 2 éléphantes que nous avons sauvées, rachetées au secteur du tourisme. Elles sont derrière moi. Il y a Eva qui est arrivée dans un état de santé épouvantable, qui est arrivée chez nous en 2019, et Lamo qui est arrivée en 2020. Elle, c'était davantage pour la sauver d'une revente en Inde. Vous le savez, c'est grâce au Brabant wallon que nous sommes en mesure de donner à nos maouts un niveau de vie supérieur à ce à quoi ils peuvent généralement prétendre ici, où ils sont très mal considérés. C'est vraiment le niveau de caste le plus inférieur qu'on puisse trouver ici. Chez nous, ils sont intégrés à l'équipe, ils sont valorisés et grâce à vous notamment, ils ont une assurance vie, des logements sur pilotis parfaitement équipés, une cuisine équipée, des douches, enfin tout ce dont ils ne disposent jamais généralement ici au Népal. Nous voici donc chez Stand Up et je vais vous refaire un petit tour du propriétaire comme je vous l'ai fait régulièrement chaque année. Donc ici à ma droite, les logements des maouts que vous nous avez financés. Donc il y a 4 chambres, ils ont chacun la leur, ce qui ici est tout à fait inhabituel, montés sur pilotis comme vous vous en souviendrez pour les protéger pendant la mousson, parfaitement équipés, et nos constructions faites sur le mode traditionnel ont, comme vous le voyez, parfaitement résisté aux intempéries, alors que les tempêtes de printemps sont particulièrement violentes. De l'autre côté, l'enclos des éléphants avec une partie couverte, une partie ouverte. Elles sont d'ailleurs là toutes les deux pour le moment, Eva et Lamo, rescapées de l'esclavage touristique. De ce côté-ci, donc, les communs, dont la cuisine équipée avec sa petite remise pour les provisions des humains. Je vous précède. Voilà. Avec d'ailleurs les maouts en pleine activité de déjeuner ce matin. La salle de bain avec 2 douches, eau chaude, équipées, aussi selon les critères népalais, mais plutôt supérieures à la moyenne de façon générale. Et derrière, des toilettes sèches. Comme vous le savez, tout est éco-friendly chez nous. C'est fait selon les traditions locales et de surcroît dans le respect de l'environnement. मेरो नाम सोमलाल कुमाल हो। म गोलाघाट पर्सा बजारको हो। उमेर मेरो 42 पुगेर 43 मा लाग्दैछु। म माउती भएको 9 वर्ष भयो। अहिले म स्ट्यान्ड अपमा आएको 13 महिना भयो। मैले लामोको माउती हो। म लाम बिहान 5 बजे उठिन्छ। 5 बजे उठेर त्यसपछि हामी के अरे साफसुफ गरिन्छ, कुची बानिन्छ। कुची बानेपछि त्यसपछि हामी मकै काट्न गइन्छ। मकै काट्न गएर 9:30 बजे हामी जङ्गल गइन्छ। जङ्गल गएर त्यसपछि हामी हात्ती लगेर छोडिन्छ। छोडेर त्यहाँ चर्छ हात्तीहरू। त्यसपछि हात्तीहरू चरेपछि खेल्छ, रुखहरूमा दल्छ, ज्यानहरू दल्छ, दलेर त्यसपछि चर्छ, खान्छ। त्यसपछि हामी 2 बजे हात्तीमाथि चढेर हामी हात्तीसारमा आइपुगिन्छ। लामोले गुर्जलवरा, यो बरुवा, निङ्ग्राको मन्टाहरू, यो निङ्ग्राहरू, कुटमेराको पातहरू खान्छ। त्यसपछि धेरै मनपर्ने केरा र बाँस। त्यसपछि हिला, अब गर्मी लागेपछि अब हिला धेरै 2 घन्टासम्म 1-2 घन्टासम्म मजाले हिलाहरू खेल्छ। खेलेपछि आनन्द आफ्नो के अरे रमाइलो गर्छ। नमस्ते, मेरो नाम आलम खान हो। घर चाहिँ रूपन्देही बुटवल हो। उमेर चाहिँ 23 वर्ष भयो। मेरो 10 वर्षदेखि काम गरेको भइसक्यो हात्तीमा। अहिले चाहिँ म यस युफोरीमा काम गर्छु। हात्तीको नाम चाहिँ इबकली हो। अहिले 3 वर्ष भइसक्यो त्यसमा काम गरेको। मेरो फ्यामिलीहरू सबैजना माउतीको काम गरिरहेछ। अनि म नि सानैदेखि सिकेँ हो हात्तीको काम गर्नलाई।
मलाई यहाँ काम गर्नमा लागुको कारण चाहिँ यहाँ चाहिँ अरू ठाउँभन्दा राम्रो स्यालेरी पनि पाउँछ। यहाँ चाहिँ किचनहरू पनि राम्रो छ, खानाहरू पनि राम्रो पाउँछ अनि सुत्नहरूलाई कोठाहरू छुट्टै छुट्टै छ। हाम्रो चाहिँ राम्रो सुविधाहरू दिएछ। अरू चाहिँ टी-सर्टहरू नि पाउँछ, यस्तो टी-सर्टहरू नि पाउँछ। कहीँ गयो भने साधनहरू छ हाम्रो आउन जानको लागि। अनि बिरामी सिरामी भयो भने त उपचार गराइदिन्छ। अनि काम गर्न त्यति सम्भावना नभयो भने मतलब बिरामी नै छ, धेरै नै रेस्ट पाउँछ। यहाँ चाहिँ अरू नि जान्छ, हाम्रो साथीहरू छ जङ्गल जान्छ। इबको माउते चाहिँ अब सौरातिर नि 4-5वटा हात्ती चलाएँ, तर चाहिँ त्योभन्दा नि राम्रो मलाई यो इब चाहिँ लाग्यो होइन। त्यसले आफ्नो मान्छेहरूलाई नि केयर गर्छ, धेरै नै खास गरेर माया पनि धेरै गर्छ। पहिला चाहिँ अब धेरै कुरा नि खान्थेँ, अब गाँजा भयो, दारू भयो, चुरटहरू भयो। तर चाहिँ अब यहाँ चाहिँ धेरै नै त्यो पनि सुधार भइसकेको छ। काममा चाहिँ वाच गर्थेन पहिला चाहिँ, यताउता घुम्ने, दारू खाने, गाँजा खाने, धेरै नै सुधार भयो। अहिले चाहिँ काममा वाच भइरह राम्रोसँग। बिर्सिराखेछ के बोल्न। नमस्ते, मेरो नाम सुब्बा तामाङ। मेरो 25 वर्ष। हात्तीमा काम गरेर 10 वर्ष भयो। यहाँ आउनुभन्दा अगाडि गुलाब कली थियो, अनि यहाँ आएर लामो। मलाई अब त्यो होइन, सँगै काम गरेर त्यही राम्रो लाग्छ। अब के गर्नु होइन, अब मलाई किन उसले सहयोग दियो, सायद दियो होइन, त्यस्तै हुन्छ। अब के बिरामी भएर कस्तो भएको थियो, अब मलाई सायद पनि दियो। अब के गर्नु, यस्तै हो। मलाई उसले अब किनभने गरिदियो अब होइन, त्यस्तो बिरामी ढल्लै थियो। अब उसले सायद दियो भने त्यसले गर्दा मैले यसले गर्दा नै पुरस्कार पाएँ। बिहातिर गर्दा त्यस्तो बिरामी हुन्थ्यो अरे क्या, डटेर मलाई। त्यही भएर त आउन सकेको थिएन, बिस्तारै लिएर आएको। उनीहरूले फलफुल खान्छ भने उसले के भनिन्छ, अब घाँसहरू खान्छ यस्तो। अब यही त मकै खाने त यो त मलाई अब उसको बानी अब छ। अब उसले मान्छे केही हान्दैन, केही गर्दैन, यस्तो हान्दैन, त्यही त मलाई अब यस्तो नि त। अब भन्ने पनि अब तल त्यही त नि, अब सबैलाई त्यही त नि। अब अर्को रुनु पर्छ, त्यस्तै त नि। अब अन्त काम गर्ने यस्तो पाउँदै यसरी दिँदैन, त्यही त नि, यसरी दिँदैन नि त अन्त ठाउँमा। यही हो, अब बस्ने ठाउँ अन्त अरू ठाउँमा गएर राम्रो हुन्छ हाम्रो। नमस्ते, मेरो नाम रामु कुमाल हो। म चाहिँ 33 वर्ष पुग्यो। मेरो घर चाहिँ गोलाघाट। मैले चाहिँ माउते गरेको चाहिँ 8 वर्ष पुग्यो। अनि एवा चलाएको चाहिँ 2.5 वर्ष। मैले चाहिँ लामु चलाएको 1 वर्ष भयो। 1 वर्ष भएपछि अनि एवामा चाहिँ मान्छे नपाएर चाहिँ एवामा चाहिँ फर्स्ट टाइम डेन्जर हात्ती मैले फर्स्ट टाइम चलाएको। हात्तीले चाहिँ अब हान्ने भनेको चाहिँ अब उसको मोड अनुसार, अब कतिखेर मोड बिग्रेको हुन्छ, कतिखेर माउती नचिन्ने हुन्छ, कतिपय चाहिँ हात्ती लाँदा चाहिँ अरू मान्छेलाई नि नर्चाउने हुन्छ। त्यही भएर हान्ने कारण त्यही हो। अब उसको अब मोड कहाँ छ त्यो अनुसारले चाहिँ अब उसको चाहिँ हेर्नु पऱ्यो माउतीले पनि। अनि त्यसको केयर के भइरहेको हात्तीलाई, त्यसको चाहिँ अब कानहरू, आँखाहरू के गरेछ त्यो चाहिँ माउतीले हेर्ने हो। माउतीले हेरिसकेपछि अनि झ्यापै चाहिँ जानु हुँदैन माउतीहरू। माउती गएपछि अनि हान्ने कारण त्यही हो माउतीलाई पनि। हात्तीहरू चाहिँ जङ्गल लिएर गएर चाहिँ राम्रो हुन्छ, किनभने हात्तीलाई नि राम्रो नि भयो, माउतीहरूलाई नि राम्रो हुने भयो। किनभने हात्ती पनि अब जङ्गलमा चाहिँ अब हुन पायो, चर्न पायो। माउतीहरूले पनि अब भनौँ न गैँडाहरू, बाघहरू, अब हात्ती रमागन हेर्न पाइयो। त्यही चाहिँ रमाइलो लाग्छ मलाई। पानी चाहिँ अब स्वरमा भन्दा अब मुखमा हालिदिएपछि पानी खाएको मन पराउँछ उसले। अनि अब बाँसहरू मन पराउँछ, मकैहरू चाहिँ केराहरू। अनि हिलोमा चाहिँ खेल्न मन पराउँछ, अरू सुकी हाल्ने यताउति गर्ने खोज्छ भयो।
Et voici pour terminer la visite notre superbe panneau avec notre logo que vous connaissez et le Brabant Wallon comme l'un de nos principaux sponsors. Encore merci.